हेलो एवरीवन, मैं आर्किटेक्ट ऋतु सिंह खितान पॉलिटेक्निक कॉलेज से। सब्जेक्ट कोड AR303 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन 2 में आज आप लोगों को बर्ड्स एंड वॉर्म्स आई व्यू हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसको किस तरह से बनाते हैं और क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो कि वैनिशिंग पॉइंट्स एज़ पर द नंबर ऑफ़ वैनिशिंग पॉइंट्स उस पर बेस्ड है, वो हम लोग उसकी 4 शीट्स कर चुके हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद बर्ड्स एंड वॉर्म्स आई व्यू। तो हियर वी गो। सबसे पहले तो व्हाट इज़ बर्ड्स आई व्यू एंड वॉर्म्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू इज़ एन एलिवेटेड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव। कभी भी हम जो बर्ड जिस लेवल पे देखती है, ऊपर से सारी चीज़ों को देखेगी, तो जो रोड जो उसे नज़र आ रही है, जो चीज़ रोड पर है वो सबसे छोटी नज़र आएगी। तो विद अ पर्सपेक्टिव एज दो द ऑब्जर्वर वर अ बर्ड। तो अ बर्ड्स आई व्यू इज़ एन एलिवेटेड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव, and the opposite of bird's eye view is the worm's eye view, as if you were an ant or a worm, and if you look at an object how it will appear, मतलब नीचे से हम उसको देख रहे हैं। A worm's eye view is a view of an object from below, as though the observer were a worm, the opposite of a bird's eye view. It can be used to look up to something, to make an object look tall, strong and mighty, while the viewer feels childlike or powerless. I mean, as if everything around you is too big than you. That makes an worm's eye view. Okay, ना एक छोटा सा रिकैप हम लोग जो अब तक हम लोगों ने पर्सपेक्टिव व्यूज़ लेक्चर्स में या क्लासेस में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, कि इन द फर्स्ट टॉप व्यू यू जस्ट हैव अ लुक एट द होराइजन लाइन। होराइजन लाइन होती है जो कि आपका आई लेवल होता है, दैट इज़ नोन एज योर होराइजन लाइन। सो इफ़ अ व्यूअर इज स्टैंडिंग ऑन अ पोस्ट, किसी भी चीज़ पे खड़ा है जो कि ऑब्जेक्ट से काफ़ी ऊपर है, तो how the box, if supposingly a box is in front of you, how the box will appear. Of course the box is a look-alike of a building, it's a rectangular box. Then in the center one, if it is, he is standing at a very normal live view, normal level, so it will appear the way you can see in the middle picture, the middle perspective. And then the bottom picture जिसमें कि he is standing below the ground line. I mean, it's almost the eye level is in is almost coinciding with the ground line. So how the picture is appearing, just remember the shapes, the top shapes of the two parallel lines. One is in a valley concept and the lower one is in a ridge concept. So now we'll एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, the picture in front of you, the bird's eye view and worm's eye view. The vanishing points are there, and that is your horizon line also, the eye level also. So if at a street level, the box, the picture is in the center, and if you go up, then it is your worm's eye view, and if you go down, it is your bird's eye view. That means अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, तो the bottom is being is visible as in the worm's eye view, and the top is visible from the bird's eye view. So अब हम एक एक करके what is bird's eye view and how can we draw bird's eye view वो पढ़ेंगे। नाउ इसको बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स एज द नेम सजेस्ट यू नीड अ थर्ड वैनिशिंग पॉइंट। इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव you need 1 vanishing point, in 2.2 vanishing points, and the third point is required for making your bird's eye view or your worm's eye view. तो एक छोटा सा आपको पिक्चर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, दैट इज़ योर worm's eye view, जिसमें कि जो आपका थर्ड जो वैनिशिंग पॉइंट है दैट गोज़ टू द टॉप, एंड इफ़ यू कम टू द bird's eye view तो आपका वैनिशिंग पॉइंट बॉटम पे चला जाता है। ये आपको दिख रहा होगा इन द बोथ द पिक्चर्स। नाउ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है? 3 point perspective is used when a person is close to a building or looking up, or when a person is close to a building and looking down. Person is standing in front of the building और उसको ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से या बिल्कुल नीचे से, then there is the use of a थर्ड पॉइंट। जैसे आप इफ़ यू रिमेंबर इन 2 पॉइंट perspectives, true verticals were always vertical. Now the third line, which is your vertical line, will not remain vertical in the third 3 point perspective, which is used for making your worm's eye view and the bird's eye view. As the building falls away from the viewer, it seems to grow smaller. Just like in 2 point, the building also grows smaller as they move towards the horizon.
ये वो जो वर्टिकल लाइंस की मैंने बात बताई कि वर्टिकल लाइंस ऑल्सो विल टेंड टू radiate tend to radiate from a single point. That is the third point. Instead of using only one or two vanishing points, we have to use a third vanishing point. By the introduction of the third vanishing point, we can create a bird's or worm's eye view. So now how to draw a बर्ड्स आई व्यू. सबसे पहले हम बर्ड्स आई व्यू पढ़ना सीखेंगे, तो बनाना सीखेंगे. तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए, उसके एकदम टॉप पर जो टॉप का पेपर का टॉप है वहाँ पर आप अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो. रिमेंबर वी आर मेकिंग अ बर्ड्स आई व्यू, तो यू हैव टू मेक द लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द टॉप. दिस बिकम्स योर आई लेवल, सो दैट आपको कुछ भी चीज़ देखनी है आप इसके नीचे देख रहे हो, तो वेयर यू हैव टू प्लेस योर आई लेवल एट द टॉप. सो दिस ब्लू लाइन इन फ्रंट ऑफ यू इन द पेज शीट इज शोइंग योर हॉरिजॉन लाइन. ओके, अब उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि इन दो जो हॉरिजॉन लाइन हमने बनाई है इस पर कन्वीनियंटली आप 2 पॉइंट्स मार्क कर लो. दैट यू कैन सी दैट इज़ योर वैनिशिंग पॉइंट 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैनिशिंग पॉइंट 2 ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, अब इसके बीच में आप थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के जो रेड लाइन आपको वर्टिकल दिख रही है, यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन दैट यू कैन सी इन रेड कलर. अब हमको एक थर्ड वैनिशिंग पॉइंट चाहिए होगा, तो आप इसको जो आपकी इनिशियल वर्टिकल लाइन आ रही है उसके नीचे कहीं डिस्टेंस पे जो पॉइंट आपको रेड डॉट दिख रहा है एकदम एट द लोअर सेंटर ऑफ योर स्क्रीन, दैट इज़ योर थर्ड वैनिशिंग पॉइंट. अब इसके साथ में हमको क्या करना है कि सेम प्रोसीजर चलेगा. जो भी वर्टिकल लाइंस आएंगी मेरी, वो तो मेरे थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो रेड डॉट आपको दिख रहा है इन द सेंटर बिलो द वर्टिकल लाइन, वहाँ पर वैनिश होंगी. और जितनी भी मेरी हॉरिजॉन्टल या पैरेलल लाइंस चल रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड वैनिशिंग पॉइंट पे जाएंगी एंड राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड वैनिशिंग पॉइंट पे जाएंगी. ठीक है, तो ये ब्लू लाइन से हमने क्या किया कि जो रेड लाइन हमने सबसे इनिशियल बीच में बनाई हुई है उसके टॉप से हमने वैनिशिंग पॉइंट्स दोनों वैनिशिंग पॉइंट्स से मिला दिया एंड सेम उसके बॉटम से जो रेड लाइन है उसके वैनिशिंग पॉइंट्स को हमने उसको मिला दिया. देन कम्स योर थर्ड लाइन. अब ये कन्वीनियंट डिस्टेंस पे जो थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है, यहाँ से आप जो मैंने अपनी ऑर्थोगोनल लाइंस बनाई हुई हैं, प्रोजेक्शन लाइंस, टॉप पर आप उसको कहीं मिला दो दोनों तरफ, तो दिस बिकम्स योर वर्टिकल लाइन. ओके, अब इसके बाद में हम इसका टॉप बनाने के लिए जहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट से मेरी ऊपर लाइन जाके मिली है, इसको हम जो आप रेड लाइंस देख रहे हो यहाँ से हम इसको वैनिशिंग पॉइंट से मिला देंगे. दैट मार्क्स दी टॉप ऑफ माई बिल्डिंग. ओके, तो ये आप जो एरो भी देख रहे होगे, जो ग्रीन एरो है विच इज़ शोइंग दोज रेड लाइंस आई एम टॉकिंग अबाउट. अब इसके बाद में आप जितनी भी ऑर्थोगोनल लाइंस है, जो इमेजिनरी लाइंस हैं जिसको हम कंस्ट्रक्शन लाइंस भी बोलते हैं, रिमेंबर आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू मेक दिस कंस्ट्रक्शन लाइंस, दी ऑर्थोगोनल लाइंस लाइटर. ओके, तो वो लाइट बनाने से आप इसको या तो इरेज करो, या जो आप इफ़ यू आर वेरी गुड एट ड्राफ्टिंग तो आप लोग इसको इरेज नहीं करके बाकी जो आपकी जो मेजर कंस्ट्रक्शन लाइंस आएंगी, जो मेजर आपकी जो ड्राइंग की लाइंस आएंगी, पेरिफेरल लाइंस आएंगी, उनको आप डार्कन अप कर सकते हो. बट इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू आर मेकिंग बर्ड्स आई व्यू और वॉर्म्स आई व्यू, ये सारी ऑर्थोगोनल लाइंस आप लोग इरेज कर दीजिए. द वे आई आप लोग की पिक्चर स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हो, उसको आप लोग डिलीट कर सकते हो. दिस इज़ हाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो बिल्डिंग आ रही है वो आपको नज़र आएगी. एक चीज़ ज़रूर नोट करो, एनीथिंग यू पुट ऑन द बिल्डिंग मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द सिस्टम. अब जो ये हमने सिस्टम बनाया, मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ऑर्थोगोनल लाइंस है, जो पैरेलल लाइंस है, दे विल मीट दी left vanishing point, the right hand side will meet the right vanishing points and the vertical lines will meet the third vanishing point which is below, which is at the lower center corner of your sheet. Okay, तो ये आपने बाकी सब कुछ इरेज करके ये जो रेड पॉइंट्स मेरे आए हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमने वापस फर्दर डेवलप करना है. तो जैसे हमको फ्लोर्स बनाने हैं तो कन्वीनियंट डिस्टेंस पे आप फ्लोर्स की लाइंस रेडिएट करते जाओ फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड वैनिशिंग पॉइंट फॉर योर लेफ्ट फेस एंड राइट हैंड साइड वैनिशिंग पॉइंट टू योर राइट फेस. तो आप इसको आप नोटिस करो, सबसे ऊपर जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उससे नीचे कम होता जाएगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और वर्टिकल लाइंस मस्ट गो टू दी थर्ड पॉइंट. वर्टिकल लाइंस भी इसी तरीके से जो ग्रीन लाइंस आपको रेडिएट होती हुई दिख रही हैं थर्ड पॉइंट से, वो आप इस तरह बना सकते हो.
ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, एज थिंग्स मूव अवे फ्रॉम यू दे अपीयर टू गेट क्लोजर, ऑल्सो व्हेन थिंग्स मूव डाउन एंड अवे दे अपीयर टू गेट क्लोजर। ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन्स है वो देखो आप ज़्यादा चौड़ी नज़र आ रही हैं, जैसे जैसे आप वो नीचे जाते जा रहे हो वो कम चौड़ी नज़र आ रही हैं। पुट योर लाइन क्लोजर एंड क्लोजर एज यू कम अवे फ्रॉम द होराइजन लाइन, दैट इज़ द व्यूअर्स आई लेवल। ओके, अब आप इसका एक अप्रॉक्स आइडिया देख सकते हो कि योर होराइजन लाइन वाज अवे एट द टॉप, देन आप उसको रेंडर कर सकते हो इन द मीडियम्स। आप ये विंडोज़ अगर आप देखोगे तो दे गेट स्मॉलर एज दे गो डाउन एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये जो मैंने डार्क लाइंस कर रखी हैं दे आर स्लैब लाइंस, एंड देन इन बिटवीन द ओपनिंग स्पेस इज़ योर विंडो, एंड देन इट विल गिव यू अ स्पेस ऑल्सो अबव द होराइजन। आप दिखा सकते हो कुछ माउंटेन और एनीथिंग एलाबोरेट टू एलाबोरेट योर स्केच, ठीक है, उसको और लाइव बनाने के लिए। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट योर बर्ड्स आई व्यू। एंड सिमिलरली वॉर्म्स आई व्यू या आंस आई व्यू में आप ये आपकी पिक्चर देख सकते हो, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द बर्ड्स आई व्यू। इन दिस केस आपका जो होराइजन लाइन होगा, जो इफ़ यू रिमेंबर हम लोग जब बर्ड्स आई व्यू पढ़ रहे थे तो हमने टॉप पर बनाया था। नाउ यू हैव टू मेक द होराइजन लाइन एट द बॉटम, एंड देन उसके बाद आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए योर थर्ड पॉइंट विल गो ऑन द टॉप। दैट मीन्स द वर्टिकल लाइंस अब जो मिलेंगी वो ऊपर जाकर मिलेंगी, एंड वर्टिकल आपकी नीचे तो आपको चौड़ा नज़र आएगा एंड ऊपर आपको कम नज़र आएगा, वो क्लोज़र होती हुई नज़र आ जाएंगी। इट इज़ मेक द ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर टुगेदर एज दे गो अप। तो जो प्रोसीजर आप फॉलो करोगे इट्स सिमिलर टू बर्ड्स आई व्यू। लोअर द होराइजन लाइन, प्लेस योर थर्ड पॉइंट इन द स्काई, मेक ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर टुगेदर एज दे गो अप, and this is what we'll be getting following the same procedure as we have done with the bird's eye view. तो इसमें आप देखो नीचे वाली जो बिल्डिंग है, now the mountain is you can see it standing against the just behind the building, and in the other case in the bird's eye view the mountain was just above the horizon line. आप उसको ये नोटिस कर सकते हो, नीचे की जो विंडोज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, एंड एज दे गो अप दे आर अपीयरिंग टू बी very smaller. So this was about your bird's eye view and worm's eye view. You can do practice at home with the same procedure following. And as of now for today's lecture we are done. So thank you, have a nice day.